کشمیر میں ایک دمی پرائم منسٹر لا کر جو باتیں کی جا رہی ہیں صوبہ بنانے کی، جو باتیں کی جا رہی ہیں ایک نیا راستہ ڈھونڈنے کی، یہ کشمیر آواز کھونے کے برابر ہے۔ یہ پیسے کا ووٹ ہے، یہ فراڈ کا ووٹ ہے آزاد کشمیر کے اندر، اور ہم اس الیکشن کے نتائج کو کلیتاً مسترد کرتے ہیں۔ اس کے خلاف پورے آزاد کشمیر میں موومنٹ چلائیں گے۔ یہ کہتا ہے فیئر اینڈ فری الیکشن، یہ عمران خان کی آواز ہے، یہ جنگل سے ملے گی۔ اسلام آباد ہم نے رکھی ہے جمعے کے دن، سارے ٹکٹ ہولڈر ہمارے اکٹھے ہوں گے، ہم پاکستانی میڈیا کو بتائیں گے کہ کس طرح آزاد کشمیر کے حقوق کو لوٹا گیا ہے۔ حکومت آپ کی ہے، پولیس آپ کے انڈر ہے، پھر بھی آپ کو یقین نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، تو پھر واحد حال یہی ہے کہ ٹیکنالوجی کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آزاد جموں اینڈ کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات ہو گئے، نتائج بھی آ گئے، اپوزیشن ایک بار پھر دھاندلی کی آواز اٹھا رہی ہے، بات احتجاج کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ پی ایم ایل این کے جتنے بھی لیڈرز تھے جن کا تعلق آزاد جموں اینڈ کشمیر اور وہاں ہونے والے انتخابات سے تھا، انہوں نے ایکسٹینسولی ایک پریس کانفرنس کی اور یہ فیصلہ کیا کہ جمعے کے روز وہ تمام لوگ اسلام آباد آئیں گے، تمام کینڈیڈیٹس، تمام الیکشن ریلیٹڈ پیپل جو کہ آزاد جموں اینڈ کشمیر قانون ساز اسمبلی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ آئیں گے اسلام آباد اور بیٹھ کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے اور پوری دنیا کو یہ بتائیں گے کہ کس طرح اسلام آباد نے کشمیریوں کے حق پر ڈاکہ ڈالا۔ اب جب یہ سب ہوگا تو ہر ذی شعور شخص اور سمجھنے والا انسان سیاست کو یہ ضرور سمجھے گا کہ جب اس قسم کا معاملہ ہوگا تو جو پنجاب میں بیٹھے پی ایم ایل این کے لیڈرز ہیں، پنجاب میں بیٹھے جو پی ایم ایل این کی وائس پریزیڈنٹ ہیں، پنجاب میں بیٹھی جو مریم نواز صاحبہ ہیں، وہ کیسے خود کو روک پائیں گی اسلام آباد نہ جائیں وہ؟ اس لیے کیونکہ مریم نواز صاحبہ اپنی الیکشن کیمپین کے دوران جو آزاد جموں اینڈ کشمیر کے اندر کر رہی تھی، اس دوران وہ قوم سے، آزاد جموں اینڈ کشمیر کی عوام سے، وہاں کے لیڈران سے، وہاں کے پولیٹیشن سے یہ وعدہ کر کر آئی تھی کہ اگر ان کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا، اگر ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، اگر کوئی دھاندلی کی گئی اور اگر کوئی ایسا پروسیس یا ایسا کوئی چیز ہوئی جس سے انتخابات کے اوپر ان کی شفافیت کے اوپر سوال اٹھے، تو جہاں آپ کہیں گے، جہاں آزاد جموں اینڈ کشمیر کی عوام کہے گی، وہاں مریم نواز آ کر کے دھرنے میں، احتجاج میں ان کا ساتھ دے گی۔ تو جمعے کو ہم دیکھیں گے کہ بہت سے لیڈران انکلوڈنگ مریم نواز شریف اسلام آباد کا رخ کریں گی اور ان کشمیری لیڈران کے ساتھ بیٹھ کر کے پوری دنیا کو یہ بتائیں گی کہ کس طرح کشمیر کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بات یہ بھی ہے کہ جب یہ سب کچھ ہوگا تو پوری دنیا میں پاکستان کی کیا تصویر جائے گی؟ جب یہ سب کچھ ہوگا تو بھارت میں اس ٹائم پر کیا سینٹیمنٹ ہوگا؟ کیونکہ وہ لوگ تو خوش ہوں گے کہ بھائی اسلام آباد کے خلاف اگر آزاد جموں اینڈ کشمیر کے لوگوں نے ایک علم بلند کیا ہے تو وہ انڈیا کو، بھارت کو سوٹ کرے گا، پاکستان کو نہیں۔ یہی تو المیہ ہے کہ آزاد جموں اینڈ کشمیر کا انتخاب آزاد جموں اینڈ کشمیر کا ہونا چاہیے تھا، اس انتخاب کو پنجاب کے انتخابات کا رنگ نہیں دینا چاہیے تھا۔ یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی امیج کے لیے، آزاد جموں اینڈ کشمیر اور وہاں کے لوگوں کے لیے، ان کے امیج کے لیے یہ بالکل اچھا نہیں ہے۔ آج کے مہمان میں آپ کے سامنے رکھوں گے اور پھر ڈسکشن کو آگے لے کر چلیں گے۔ مجھے آج جوائن کر رہے ہیں جی سید یاور بخاری صاحب ہیں، وزیر بیت المال ہیں پنجاب کے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ریپرزینٹنگ پاکستان تحریک انصاف۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ ہنا پرویز بٹ صاحبہ ہیں، پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے، سٹنگ ایم پی ہیں۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ کمیل حیدر شاہ صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے، ڈی ایس این جی کے ذریعے میرے ساتھ بنے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ میں تمام مہمانوں کو کہوں گی، یاور بخاری صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سر آپ کے سامنے سوال رکھوں؟ یاور بخاری صاحب آپ میرے ساتھ ہیں؟ جی جی آل رائٹ، اوکے، السلام علیکم، بہت شکریہ یاور بھائی۔ ویسے تو میں آپ کا اسٹوڈیو میں انتظار کر رہی تھی، لیکن اینی ویز میں سوال آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ مجھے یہ بتائیے، آپ کشمیر کاز کی اچھی خدمت کر رہے ہیں، جب جمعے والے دن آپ دیکھیں گے کہ تمام جو کشمیری لیڈرز ہیں جن کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے، جو کہ اس الیکشن پروسیس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے، وہ اسلام آباد دا سینٹر، دا کیپٹل آف دا کنٹری میں آ کر بیٹھیں گے اور یہ آواز بلند کریں گے کہ جی کس طرح کشمیر کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ یہ کہ اچھی خدمت ہے کشمیر کاز کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجزاک خیرا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک فیئر اینڈ فری الیکشن سامنے ہوا ہے، کسی نے کوئی شور نہیں بچایا سوائے جو ہارا ہے۔ ابھی اگر یہ لوگ ریجیکٹڈ ہو گئے ہیں تو اس کے اندر جو شور مچائیں، اٹ از اے ڈیموکریٹک رائٹ۔ لیکن بینش اس بات کے اوپر ناراض نہیں ہونا چاہیے، اگر ان کو اختلاف ہے ایک چیز سے اور وہ آواز اٹھاتے ہیں،
मैं इसको मुस्बत तौर पे क्यों लेता हूं कि इसके अंदर फिर इलेक्शन के इस्लाहात होंगे और होने चाहिए और बेहतर होना चाहिए। देखिए आज जो हमारे पीपल्स पार्टी के भाई हैं और बहनें हैं, नून लीग की बहनें और भाई हैं, अगर उनको किसी चीज पे एतराज है तो एक वे फॉरवर्ड बताएं कि अगला रास्ता क्या है, किस तरीके से और शफाफियत आ सकती है। इसके अंदर हमें नाराज नहीं होना चाहिए, ये इनका जमहूरी हक है, बिल्कुल करें, लेकिन उस हक को इस्तेमाल इस तरीके से करें कि जहां पे इस्लाही पहलू आए, ना कि दुश्मन को फायदा हो उसके अंदर। अगर ये लोग बैठ के वो बातें करें कि जो हिंदुस्तान कर रहा है या जो आरएसएस की हुकूमत मोदी की इंडिया में बोलती है, अगर उस बातों के करीब भी ये जाती है, इनको खुद जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए वहां पे रुक जाना चाहिए और ये इस्लाहात, इनका बिल्कुल मुझे कोई एतराज नहीं, बिल्कुल करें और इस्लाहात की बात करें। ये बार बार बातें करें कि क्योंकि ये नहीं जीते और ये रिजेक्ट हो गए तो ये फिर धांधली हुई है, तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी नाइंसाफी एक प्रोसेस के साथ है। आज तक इससे पहले इन लोगों ने जब भी जीते, इन लोगों ने कभी धांधली की बात नहीं की, कभी कोई ऐसी बात नहीं की। अभी जब हार रहे हैं, इनका वजूद वहां से खत्म होते जा रहा है, तो ये फिर ये बातें करेंगे, कोई बात नहीं, दे मोस्ट वेलकम, बिल्कुल जुलूस निकालें, जलसे करें, कश्मीर के खिलाफ जो बातें करनी है ने करें, कोई हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दिमाग में ये रखें यावर भाई आप लोग को फर्क नहीं पड़ता ना, लेकिन पूरी दुनिया को फर्क पड़ेगा। आप फेयर एंड फ्री इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, मैं आपके सामने वीडियो रखना चाहती हूँ जी। यावर भाई जरा देख लीजिए और सुन लीजिए, मैं आप ही के साथ हूँ, मैं आपको सुनूंगी। जरा दिखाइए जी कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं एज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरकार के, वो ऑपोजिशन हमें क्या दिखा रही है, जरा वीडियो दिखाइए जी। इलीगल हो रहा है ना सर, ये इलीगल हो रहा है ना, ये जो हो रहा है ये इलीगल हो रहा है, ये मुनासिब नहीं है, हाँ ना, ये ठीक नहीं है। ये आगे से अगर किसी ने हमें कहा भाई आप क्या कर रहे थे उधर, तो फिर हम क्या जवाब दें, हाँ ना, हाँ ना, ये आपका काम नहीं है, ये हमारा काम है सर, पूछेंगे ना, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है सर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योरिटी फ्रॉम कर। जी यावर भाई, इलेक्शन कमीशन का अमला जो है वो ठप्पे लगा रहा है, बल्ले के निशान के ऊपर ठप्पे लगा रहा है, वीडियो सरेआम है और ये ऊपर से कहा जा रहा है जब उनको रोका जाता है कि भाई आप अपने काम से काम रखें, ये हमारा काम है। अब मुझे बताएं कि कैसे आप ये यकीन दिलाएंगे ऑपोजिशन को भी, फॉर दैट मैटर जहां जहां जिन जिन लोगों ने वीडियोस देखी हैं, कि इलेक्शन का प्रोसेस वाज फेयर एंड फ्री। यावर भाई जी बीरिश, देखिए मैं इन चीजों को डिनाई नहीं करता हूँ कि कहीं ना कुछ नहीं होता। इन लोगों के जमाने में तो टोटल होता था ना, तभी तो इतना फर्क पड़ा, 35 साल 40 साल से होता आ रहा है। लेकिन मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इस किस्म की जो खबासतें हैं, इनको खत्म करने के लिए वे फॉरवर्ड शफाफियत की तरफ क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है, उसके अंदर ये लोग अपने तरीके से जो भी इनके तहफुजात हैं उनको बयान करें, उनको दुरुस्त करें, ताकि कोई भी हुकूमत कल बनती है, किसी की भी बनती है, किसी के अंदर इखलाकी जुर्रत ना हो कि कल वो ये कहे कि भाई बेईमानी हुई। देखिए मैं इंडिविजुअल लोगों को, मैं खुद इस दफा जब इलेक्शन में खड़ा हुआ था, सिर्फ एक बात हमने हर किसी को कही कि किसी को बेईमानी मत करने देना। जब ये हम कहते हैं तो हर हल्के में, हर पोलिंग स्टेशन में जो वहाँ के लोकल नुमाइंदे हमारे होते हैं, सपोर्टर्स होते हैं, उनकी इज्जत दाव पे लगी होती है कि हमने यहाँ से जीतना है, हारना नहीं है। हमने किसी के पास अगर जाली वोटें लिखी हुई है, वो हमने पोल नहीं होने देनी है। हर कोई ख्याल करता है। ये जो आपने मुझे वीडियो दिखाया, ये दिस इज वन ऑफ, इससे ज्यादा मुझे दिखा दे, 10 दिखा दे, ये फिर बोले, इनका अगला काम ये होना चाहिए कि ये हल्का खोले दोबारा, इनको ये बोलना चाहिए। तो वो हल्का फिर हुकूमत का काम है, हुकूमत खोली। और खान साहब ने बार बार पिछले जनरल, सर मुझे नहीं पता इनका क्या काम है क्या काम नहीं है, लेकिन मैं एक चीज जानती हूँ, किसी और को फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन हर पाकिस्तानी नेशनल, हर पाकिस्तानी को जरूर फर्क पड़ेगा जब जुमे को आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के जो लीडर्स हैं, जो कि इलेक्शन का हिस्सा रहे हैं, वो जब इस्लामाबाद आकर बैठेंगे और इस तरह के नारे करेंगे, तो इंटरनेशनली जो हमारी पिक्चर जाएगी। आई एम रियली कंसर्न्ड अबाउट दैट। आई विल गेट बैक टू यू यावर भाई, आई विल गेट बैक टू यू। I do understand.
ओके I'll get back to you. I have other panelists also. Please मेरे साथ बने रहिए and listen to the other panelist also कि वो क्या कहते हैं. हिना भट्ट साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए. मुझे ये नहीं जानना हार की वजह क्या है, हार गए, अगली प्लानिंग क्या होगी. मरियम बीबी ने बता दिया ट्विटर अकाउंट पर भी कि जी हमारी मैं अब अगली प्लानिंग के बारे में सोच रही हूँ. मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूँ, इतना सब कुछ हो गया, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की कैंपेनिंग, आप खुद वहाँ गई हुई थी, मरियम नवाज साहिबा वहाँ पे गई थी, एक्सटेंसिवली कैंपेन हुआ. PMLN जो है उनके प्रेसिडेंट किधर हैं, आपके सदर किधर हैं, इलेक्शन कैंपेनिंग हो गई, इलेक्शन हो गए, नताइज आ गए, आप हार गए, बुरे तरीके से हार गए, इसके बावजूद आपके जो प्रेसिडेंट है वो चुप हैं, क्यों? वेयर इज द प्रेसिडेंट ऑफ PMLN? बीनी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही क्वेश्चन जो आपने बाकी पैनलिस्ट से पूछा कि कश्मीर की कॉज जो है वो कल आपने फवाद चौधरी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और साथ उन्होंने दोबारा अली अमीन गंडापुर को बिठाया हुआ था और अली अमीन गंडापुर वाज दैट पर्सन जिसने जब आपको पता आपने भी जलसे अटेंड किए तो वज़ीर आज़म चाहे वो सिलेक्टेड हो वो अली अमीन गंडापुर को दोबारा हेलीकॉप्टर पे बिठा के लेके आता है. वो इंसान जिस और खड़ा करके उसको कहता है कि मरियम बीबी पे गालियां गलोच करो और गलत बातें करो. ये वही बंदा है जिसने पैसे यूज़ करके कश्मीरी कॉज को अफेक्ट किया, जिसने फायरिंग की निहत्ते कश्मीरियों पे और फिर मरियम बीबी पे भी अटैक किया. तो पहले तो मैं आपके फोरम पे इस चीज़ को कंडेम करना चाहती हूँ और यावर बुखारी साहब जो है वो बड़े हमारे एक एजुकेटेड और अच्छे. मैं अली अमीन पे तो शो कर ही नहीं रही हूँ, वो हाईली कंडेमेबल है. आप पहले प्रेसिडेंट अली यावर बुखारी साहब भी कंडेम करेंगे अली अमीन गंडापुर की बात और फवाद चौधरी की बात और इमरान खान का एक्शन कि इमरान खान अगले दिन अली अमीन गंडापुर को अपने साथ हेलीकॉप्टर पे बिठा के लेके गए, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने मना किया. मैं इसका बिल्कुल सवाल करूंगी, ये मेरा वादा है आपसे. आप कश्मीर की बात कर रही है बिल्कुल नहीं, मैं बात कर रही हूँ प्रेसिडेंट ऑफ PMLN. ठीक है, अच्छा, प्रेसिडेंट ऑफ PMLN शहबाज शरीफ साहब जब टिकट्स दी गई कैंडिडेट्स को तो शहबाज शरीफ साहब ने ही डिसाइड किया नाम टिकट्स देने पे. फिर आपको पता है मॉनिटरिंग सेल बना हुआ था, मॉनिटरिंग सेल 180H पे भी था. इसी तरह जो शहबाज शरीफ साहब ने मरियम बीबी को बड़ा अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छी कैंपेन. लेकिन देखिए नवाज शरीफ साहब ने डिसाइड किया, उन्होंने कहा कि मरियम बीबी इज बिकॉज वेरी पॉपुलर एंड यू हैव सीन हर इन द जलसाज कि किस तरह वो जलसाज में पॉपुलर रही. तो उन्होंने डिसाइड किया कि मरियम बीबी कश्मीर की कैंपेन जो है वो लीड करेंगी और शहबाज शरीफ साहब का क्योंकि बैक का मसला था इसलिए वो ऑन ग्राउंड नजर नहीं आए. लेकिन क्योंकि वो पार्टी के सदर हैं तो उन्होंने कैंडिडेट्स की डिसीजन, टिकट्स देने और मॉनिटरिंग सेल की जो पूरी चीज वो शहबाज शरीफ साहब ने खुद की. लेकिन अगर पार्टी के कायद डिसाइड करते हैं कि सपोज मरियम बीबी इज अ वेरी पॉपुलर पर्सन और ये आप पे भी देख आप भी कश्मीर में थी, ठीक है, तो बेसिक कि अगर अवाम जो है अवाम डिसाइड करती है या अवाम को लगता है कि मरियम बीबी बहुत पॉपुलर है लेकिन ट्रांसलेट नहीं होता वोट, तो फिर बात वही है ना कि फिर बात वही आती है कि धांधली हुई, फिर बात वही आती है कि धुंध नहीं थी लेकिन हमारे वोट कहाँ गए. अगर आप ऑन ग्राउंड ये जैसे आप बात करी थी ना, मैं ट्विटर चेक करी थी शहबाज साहब का, हालांकि मुझे शो पे आने से पहले करना चाहिए था. 6 ट्वीट्स उन्होंने किए हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शन से रिलेटेड, आई थिंक सो, जितना मैंने काउंट किया, जस्ट 6 ट्वीट्स फॉर द प्रेसिडेंट. आपने अवाम की बात की, ये बात आप मुझे नहीं समझाएं, अवाम को भी समझा रही है या प्रेसिडेंट साहब को समझाएं, शहबाज शरीफ साहब को, क्योंकि आपकी डिवाइड जो है ना बड़ी स्ट्रॉन्ग गहरी नजर आ रही है कि मरियम का टास्क था, मरियम नवाज डिवाइड नहीं, मरियम को हैंडल करना. ये लोगों की ख्वाहिश हो सकती है, रियलिटी नहीं है, कोई डिवाइड नहीं है. मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो कायद है, वो डिसाइड करते हैं. देखिए हमारी पार्टी में इमरान खान की तरह एक अकलौता पार्टी का वो बंदा नहीं है कि इमरान खान अकलौता है. नहीं, अभी आपने अली अमीन गंडापुर की बात की, इमरान खान अकेले और बाकी सारे जो लोटे कट्टे किए हुए हैं, सियासी खाना बदोश किए हुए कट्टे. हमारी पार्टी में मरियम नवाज है, शाहिदा खान है, शहबाज शरीफ साहब है, एहसन इकबाल है. सो पार्टी लीडर डिसाइड करता है. ग्रेट लीडर्स बट ऑल ऑन डिफरेंट पेजेस. डेमोक्रेसी, पीपल आर सपोज्ड टू बी ऑन डिफरेंट पेजेस. बहुत बहुत मुबारक हो. वाले तो फिर भी नहीं पहुंचे, but still the page is same. जी कुमैल साहब अस्सलाम वालेकुम. 11 सीटें आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में, कॉन्ग्रेचुलेशंस, नॉट बैड एट ऑल, वेल प्लेड, यू पीपल आर ऑन नंबर 2. लेकिन अफसोस कि खुर्शीद शाह साहब की जमानत नहीं हो पाई सर. 11 सीटें आपको आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में मिल गई. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. क्या आप चाहे रिस्पॉन्ड पहले खुर्शीद शाह साहब पे करें या ये आपके जो आज़ाद कश्मीर जम्मू इलेक्शन इस पे आपको रिस्पॉन्ड किया जाए?
کہ اس سر میں آپ کو گورنمنٹ مرضی نے ہے، آپ نے وہی کہنا ہے جو آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ میں نے کہنا ہے. میں نے تو دونوں کو نتھی کر دیا، جو آپ کا دل کرتا ہے آپ بولیں سر. میں نے اپنا سوال آپ کے سامنے رکھ دیا. جی اچھا میم، میرا یہ ہے، پہلا تو یہ جو آزاد جموں کشمیر کا جو الیکشن ہے اس کا نتائج آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے فیڈرل گورنمنٹ نے ریگنگ کی. کیسے آپ کے پاس وہ ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں جس میں یہ علی گنڈا پور جو ہیں وہ کس طرح پیسے چلا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن کے منع کرنے کے باوجود جو اتنا زیادہ آپ لوگ یہ تحریک انصاف کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں کورٹس کا اور آرڈرز کا پابند ہوں. بلاول صاحب کے لیے تو وہ آرڈرز کا بڑا پابند کیا جاتا ہے، شہباز شریف کو ایئرپورٹ پہ روکا جاتا ہے، لیکن جب وہی الیکشن کمیشن آرڈر کر رہا ہے کہ یہ بندہ نہ آئے تو اس کو پھر جو ملک کا پرائم منسٹر ہے وہ اس کو اپنے جلسوں میں لے کے آ رہا ہے. فل دھاندلی کی جا رہی ہے. اور اس کے باوجود آپ نے دیکھا پاکستان پیپلز پارٹی نے 11 سیٹیں، اور ان کے جو منسٹرز تھے یا ان کے جو سپوکس مین تھے وہ اس وقت یہ کہتے تھے کہ ان کی تو 8 نشستوں پہ ان کے کینڈیڈیٹس ہیں، زیادہ تو ان کے کینڈیڈیٹس بھی نہیں ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پیپلز پارٹی نے سیٹیں ادھر جیتی اور پھر دوسرے نمبر پہ اوور آل سب سے زیادہ ووٹ اٹھائے. اور اگر یہی الیکشن فری اینڈ فیئر ہوتا، بغیر گورنمنٹ منی جو ہے وہ نہ ہوتا، فیڈرل گورنمنٹ کی انوالومنٹ کے بغیر ہوتا، تو اس کا رزلٹ آپ مزید بہتر دیکھ سکتی تھی، جو کہ آپ نے حال ہی میں پورے پاکستان میں جہاں جہاں بائی الیکشن ہوا آپ نے فیڈرل گورنمنٹ کا حال دیکھا کہ انہوں نے کوئی 12-13 بائی الیکشنز میں ایک سیٹ جا کے نکالی. رہی بات ہمارے سید خورشید احمد شاہ صاحب کی کہ اب ان پہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کس بات کا کیس بنایا گیا ہے، اور پھر ان کو ضمانت نہیں دی جا رہی، اور پھر ایسے بیانات آ رہے ہیں کہ بھائی سمجھ نہیں آ رہا. ایک الزام ہے جو ثابت بھی نہیں ہوا، اور اس الزام کی بنا پہ 2 سال ایک بندہ قید میں ہے، جیل میں ہے، جیل کی سزا کاٹ رہا ہے. اس طرح یہ نیب کے کیسز کتنے لوگوں پہ ہیں. آپ ذرا یہ دیکھیں کہ جو اس وقت فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے کتنے ممبرز پہ ہیں. علیمہ خان پہ ہیں، ہمارے علیم خان صاحب ہمارے بڑے نہایتی میں ہمارا ان سے بہت ذاتی تعلق ہے، اس پہ ہے. ہمارے جہانگیر ترین صاحب پہ اتنے بڑے کیسز ہیں، وہ پھر 8-10 ممبر بٹھا دیتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کو بلیک میل کرتے ہیں. وہاں پہ تو کوئی نیب کی انکوائری نہیں ہو رہی، ان کو تو بالکل نہیں اٹھایا جا رہا، یا ان کو 2-2 سال ایسے ٹرائل بیسس پہ چلایا جائے. کوئی ثابتی ہو، کوئی کیس بنے، کوئی کیس چلے. یہ بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ بغیر کیس چلائے آپ کسی کو 2 سال اندر کر رہے ہیں اور پھر ضمانت بھی نہیں دے رہے. تو یہ تو آپ کے سامنے ہے. آپ اس کو زیادہ بہتر سمجھ. میں آپ کو کمیل وجہ بھی بتاؤں گی بریک کے بعد، اور میں یہ سوال بھی یاور بخاری صاحب سے اٹھاؤں گی. مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے. تینوں ڈائنامک پینلسٹ ہیں نا، یاور بخاری صاحب اینڈ آف کورس کمیل میرے ساتھ بنے ہوں گے. ویل بی بیک ان اے بٹ. بریک کے بعد جو آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویری مچ اسٹل ان کانورسیشن ود ہنا پرویز بٹ، کمیل حیدر شاہ اینڈ سید یاور بخاری. یاور بھائی، یہ آپ جانتے ہی ہیں نا، نذیر چوہان صاحب کو آپ ہی کی پارٹی کے ایم پی ہیں. کتنا حسین اتفاق ہے، کیس کی نوعیت کہوں، ڈومیسائل کا فرق کہوں، کہ ان کو اٹھایا جاتا ہے اور 1 گھنٹے کے اندر اندر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. مطلب اگر یہ پارشیالٹی نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیسے آپ کنونس کریں گے اپنی اپوزیشن کو؟ وہ اپوزیشن جو کہ خورشید شاہ صاحب 2 سال سے کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کی ضمانت نہیں ہو پا رہی. وہ بھی ممبر ہے، یہ بھی ممبر ہے. جی نہیں، ممبر کی بات نہیں ہے دینش. یہاں پہ کیسز کا فرق ہے، وہ نیب کے پاس ہے مسئلہ. یہ جو ہے ایک شکایت کے اوپر ایک بات کی گئی جو نذیر چوہان نے ایک بیان دیا تھا، اور اس کے اندر جس نے ان کے اوپر کیس کیا وہ پارٹی کا ہی بندہ ہے. یہ کیس کسی ٹائم پہ واپس بھی ہو سکتا ہے. جب نیب کے پاس ایک چیز گئی ہے، جوڈیشری کے پاس ایک چیز ہے، تو وہ جوڈیشری جانے. ابھی شہباز شریف کو بیل کے اوپر بار کر دیا ہے، حمزہ شہباز کو کر دیا ہے، تو وہ کیا پارشل تھا؟ اس کے اوپر تو بات نہیں کرتے. آصف زرداری باہر گھوم رہے ہیں، اس کے اوپر تو کوئی بات نہیں کرتا. جہاں تک بات ہے فیئر اینڈ فری الیکشن کی بات کرتے ہیں، تو میں کمیل کو بہت بہت مبارک دیتا ہوں کہ بہت عرصے بعد پیپلز پارٹی نے ایک نمایاں کارکردگی دکھائی ہے، اور آئی ایم ویری ہیپی، آنیسٹلی آئی ایم ویری ہیپی کہ ایک اچھی پارٹی سامنے آ رہی ہے. اور خدا کرے کہ یہ اور ترقی کرے، بیکاز ان لوگوں نے پاکستان کا جو ایک امیج ہے، جو ایک خوبصورت سافٹ امیج ہر کوئی پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے. پیپلز پارٹی ہیز بین ون آف دا فور فرنٹ پارٹیز کہ جن نے یہ کام کرنے میں بہت اچھا کردار ادا کیا ہے.
नफरत की सियासत इन लोगों ने नहीं की, इन लोगों ने लोगों की विक्टिमाइजेशन नहीं की। ये अच्छी बात है, दिस इज गुड, आई एम हैप्पी कि एक अच्छा एक बैलेंस आ रहा है सामने। एंड आई एम ऑल्सो हैप्पी कि एक पॉलिटिशियन जो कि एक ऑपोजिट जमात से है, एक अगेंस्ट जमात से है, वो इस तरह नेशनल टीवी के ऊपर तारीफ कर। लेकिन यावर भाई, माय क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स देयर, वो ये कि भाई ये आप लोगों की टाइमिंग का भी मैं क्या कहूँ, आप लोगों ने इतमाद का वोट हासिल कर लिया, आप लोगों ने बजट भी पास करवा लिया, यहाँ तक कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के इंतखाब भी हो गए। तो क्या मैं ये कहूँ कि जो नज़ीर चौहान साहब के साथ एक एक्शन थ्रिल करने की कोशिश की गई, ये क्या जहांगीर खान तरीन ग्रुप के खिलाफ ऐलान बगावत था? तो यावर भाई अगर पकड़ ही लिया था तो पकड़ कर रखते फिर। नहीं, इशू ये नहीं था, इशू ये था कि नजीर चौहान के एक अपना बयान था, जहांगीर तरीन ग्रुप एज सच ग्रुप है लेकिन नहीं है, वो पीपल्स पीटीआई का एक हिस्सा है। एंड आई एम वेरी वोकल एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट कि ये एक हमारा हिस्सा है। जहां तक बात है नजीर चौहान की, वो एक फर्द वाहिद का उसके खिलाफ एक एफआईआर करवाई गई थी, पूछ-गुछ के लिए बिल्कुल अरेस्ट करना चाहिए था। और इस चीज को अगर फारिग करना है तो वो जो मुद्दई है वही फारिग करवा सकता है, और उससे अगर वापस ले लिया तो वेल एंड गुड, बात खत्म होगी। जहां तक बात है खुर्शीद शाह की, वो इशू हमारे हाथ से निकल चुका है, स्टेट ने केस बनाया है, वो आगे है। खुर्शीद शाह 2 साल से बाहर क्यों नहीं है, ऑनेस्ट टू गॉड आई डू नॉट नो, और मुझे इस बात की तरफ वो कभी मेरे तवज्जो भी नहीं गई। लेकिन जहां तक बात हिना ने की, तो हिना ने जीएनएन में मेरे साथ बैठ के कहा था कि शहबाज शरीफ जाएंगे कश्मीर। ये बातें गलत है कि नवाज शरीफ ने रोका हुआ है। हमारी इंफॉर्मेशन है कि नवाज शरीफ ने रोका था क्योंकि एक पैरेलल इशू चल रहा है नून के अंदर, हमजा का और मरियम का। तो वो मरियम को सामने नवाज शरीफ साहब लाना चाहते थे, उनको सामने पोर्ट्रे करना चाहते थे। खुदा का शुक्र है कि जितना जिस किस्म की लैंग्वेज और जिस किस्म के ख्यालात मरियम बीबी इजहार करती रही है अपने पीडीएम के जलसों में, और जिस तरीके से वो आगे चली हैं, खुदा का शुक्र है कि उस नजरिए को शिकस्त हुई, और इतनी बुरी शिकस्त हुई है कि हुकूमत में रहते हुए और हुकूमत की पूरी मशीनरी इस्तेमाल करते हुए भी वो जितनी सीटें उनके पास आई हैं, ये खुश आइन है पाकिस्तान की सियासत के लिए कि चीज तब्दील। मैंने पीपल्स पार्टी को सही कह रहे हैं, मैंने मुबारकबाद, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये खुशाइंद है यावर बुखारी साहब, ये खुशाइंद है। और वो जो गंडापुर साहब ने किया वो भी बहुत खुशाइंद, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल को रिजेक्ट किया गया। और इस चीज को भी जैसे पीपल्स पार्टी सामने आई है, पीटीआई को भी चाहिए कि हमारे पास अक्सरियत है, हमें बड़े भाई की तरह पीपल्स पार्टी को उनके जो जीते हैं हम सबको साथ लेके चलना चाहिए कि कश्मीर कॉज के लिए जो खान साहब ने रेफरेंडम की बात की, हम लोग की कोई सूबा बनाने के चक्कर में नहीं है। हम लोग दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि इस पार्ट ऑफ द कश्मीर में जो रेफरेंडम हुआ है वो इंडिया के ऊपर प्रेशर आएगा, आ गया सर आपका रेफरेंडम की तरफ जाएं। ऑल राइट, आई गॉट योर पॉइंट है ना। मरियम नवाज का बयानिया फेल हो गया, नंबर 1। नंबर 2, अपने आप निज़ाम के अंदर रह के निज़ाम को कैसे तब्दील करेंगे? जिस शाख पे आप बैठे होते हैं उस शाख को काट करके आप हल नहीं निकाल सकते। अगर आप रियली सीरियस हैं, अगर आप लोग के साथ ज्यादती हो रही हैं, कुछ गलत हो रहा है, आप इस निज़ाम से बाहर निकलिए और लोगों को बताइए और फिर आके फाइट करें। बीनेश, सबसे पहले तो आपने जंगी तरीन के ग्रुप वाली बात शुरू की, तो ये मुनाफिक की सबसे बड़ी निशानी होती है कि मुनाफिक आता तो एहतसाब के नारे पे है, लेकिन जब आता है तो आटा चोरों को, चीनी चोरों को, अद्वियात चोरों को किस तरह वो एहतसाब के दायरे से बाहर कर देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड, मेरे ऑनरेबल कुलीग यावर बुखारी साहब ने बात की, बिल्कुल मरियम बीबी बहुत पॉपुलर है, और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने डिसाइड किया कि मरियम बीबी कश्मीर की कैंपेन लीड करेंगी, और आपको भी पता, यू आर देयर ऑन ग्राउंड रियलिटी, शी वाज वेरी पॉपुलर, और आवाम जो है वो निकलती है, मरियम बीबी को वोट देती भी है। और अगर धांधली होती है तो इस चीज़ को मैं अब देखा, हमें ये भी कहा जाता था कि अगर बयानिए की बात है तो मुझे जहाँ तक लगता है कि मुस्लिम लीग नून का और मियाँ साहब का बयानिया जो है वो बहुत मकबूल है, और मकबूल इसलिए है कि अगर आप देखें तो जलसों में जिस तरह आज़ाद कश्मीर के जलसों में अवाम निकली है वो मियाँ साहब के बयानी की वजह से निकली है। दूसरी बात, आई डोंट एग्री विद व्हाट यू से कि हमें क्यों सिस्टम का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास बड़ा ईजी सोल्यूशन था कि हम पंजाब में भी हुकूमत बना लेते, हम नहीं बनाना चाहते, हम सिस्टम का पार्ट नहीं बनना चाहते। हम वो चेंज हैं ज़रूर, हम कभी ना मरियम भी डिस्करेज होती हैं ना इस चेंज का पार्ट हम बनना चाहते हैं। देखिए, जब बात, और ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि जिस तरह ये बात कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर की कंडेम, हम उसको क्यों नहीं अभी ये कह रहे हैं
पॉलिटिक्स ऑफ मनी इन लोगों ने तनवीर इलियास को, पॉलिटिक्स ऑफ मनी जिस तरह यूज की गई, पॉलिटिक्स ऑफ पावर जिस तरह रियासत की मशीनरी को यूज करके जिस तरह वोट तब्दील कराए गए, और फिर तनवीर इलियास वाली बात भी जिस तरह पावर ऑफ मनी, और जिस तरह हम आपको कह रहे हैं कि इन्होंने बात की रेफरेंडम, सामने अपनी जो शिकस्त है वो मानी है मुश्ताक मिन्हाज साहब ने। मुश्ताक मिन्हाज साहब से तो देखिए बेसिकली उन्होंने सिर्फ ये लिखा मैं एक हारे के लश्कर में हूं, इन लोगों ने अपनी शिकस्त को तस्लीम करता हूं। शिकस्त को इमरान खान जो डमी वजीर आजम हमारे पे मुसल्लत किया जा रहा है ना, और कश्मीर कॉज को इन्होंने जिस तरह खराब किया, एक तरफा रेफरेंडम की बात की, जिस तरह इन्होंने लोगों के हकूक पे डाका डाला, जिस तरह इन्होंने वोट चोरी की, ये सब चीजें अब जैसे आप बात कर रही हैं बाय इलेक्शन टेस्ट सियालकोट में, देखिए बाय इलेक्शन, और अगर आप वहां हार गए, अगर फिरदौस आशिक अवान साहिबा को कोई तगड़ी बैक मिल गई, देखिए कराची से लेके खैबर तक सारे पंजाब के बाय इलेक्शंस किस तरह मुस्लिम लीग नून जीती है, जिस तरह बाकी हमारी ऑपोजिशन की जमातें भी जीती हैं, तो ये कश्मीर के इलेक्शंस पे इन्होंने जिस तरह कश्मीरियों के वोट पे डाका डाला, उसको हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, और इसलिए हम इसको एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। विल ट्राई टू रिस्टोर आवर कनेक्शन विद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे इस छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी। यावा बुखारी साहब, हिना परवेज भट्ट साहिबा, कुमैल हैदर शाह साहब मेरे साथ मौजूद है। कुमैल साहब, वो जो एक पार्ट रह गया था ना डिस्कशन का, या तो आप मासूमियत में नहीं बताना चाहते या जेन्युइनली आपको नहीं पता कि खुर्शीद शाह साहब के साथ मसला क्या है। फैसले में ये लिखा है सिंध हाई कोर्ट ने, नहीं सर, मैं आपकी जो मासूमियत है उसके अंदर इजाफा कर देती हूँ आपको फैक्ट बता के, और अगर आप मेरे साथ ये ट्रिक खेल रहे हैं कि यू डोंट वांट टू कन्फेस इट ऑन एयर कि व्हाट द प्रॉब्लम इज, क्योंकि मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि आपने शायद फैसला नहीं पढ़ा होगा, तो सिंध हाई कोर्ट ने अपनी डिसीजन में ये लिखा है कि क्योंकि खुर्शीद शाह साहब प्रॉपर जेल में तो है नहीं, एक यूनिट को सब जेल बनाया हुआ है बिकॉज ऑफ हिज मेडिकल फैसिलिटीज, अगर वो कैद में ही नहीं है तो रिहाई किस बात की है, जमानत किस बात की सर। तो फिर आप लोग डोमिसाइल की बात करते हैं, हमारा डोमिसाइल अलग है या हमारा पंजाब का डोमिसाइल नहीं है, लेट इट बी आसिफ अली जरदारी, लेट इट बी एनीबडी फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो सर डोमिसाइल जिनके पंजाब के हैं ना, उनको जेलें काटनी पड़ती हैं। मरियम नवाज साहिबा भी जेल में रही हैं, शहबाज शरीफ जेल में रहे हैं, हमजा शहबाज जेल में रहे हैं, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद, इट्स लॉन्ग रेस, राना सनाउल्लाह, अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगी तो ज्यादती हो जाएगी, बाकी नाम आप ले लें जी। देखें, जो जिन्होंने गलत जेल काटा है उनके लिए तमाम बहुत ज़्यादा हमारे लिए इज्जत है, जिन पे कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ और जो पॉलिटिसाइज केसेस बनाए जाते हैं, तो जिनमें जिस पार्टी के भी वो लोग हों, हमारी पार्टी के हों, दूसरी पार्टियों के हों, जिन्होंने जेल काटा है उनके लिए तमाम इज्जत है। खुर्शीद अहमद शाह साहब को जो ऑर्डर आप बता रही हैं कि उनको जो सब जेल करार दिया गया है या जो वो हॉस्पिटल में है, तो वो डॉक्टर्स ने कहा है, और वो कोई ये नहीं डॉक्टर्स ने कहा या वो घूम रहे हैं अपने घर बैठे हुए हैं या किधर इधर उधर जा रहे हैं, वो एक जिस कंपाउंड में है उस कंपाउंड में 2 साल रहे हैं मैम। मतलब आप मैं अपने इस घर में बैठा हूँ, अगर मुझे कोई इस रूम में 2 साल कैद कर दे, आप नियो टीवी की स्टूडियो में बैठी है, वहाँ पे कोई कहे कि स्टूडियो से आप बाहर नहीं आ सकते, जस्ट आप उसको सोचें। और बगैर किसी ट्रायल के, मैम बड़ी बात तो ये ना कि ट्रायल हो, केस चल रहा हो, कोई साबितगी हो गई हो, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो दूसरी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके इतने लोगों पे केसेस हैं, उनका तो मतलब उनको क्यों नहीं अंदर किया गया, यही रवैया उनके साथ रखा जाए, यही उनको अंदर किया जाए और फिर केस चलाया जाए, और जब फिर साबित हो तो फिर उनको छोड़ दिया जाए। अलीमा खान हो, अलीम खान साहब हो, जितने भी दूसरे लोग हों, उन पे भी इसी तरह किया जाए। और रही बात कि आप कह रही हैं कि जेल नहीं काटा गया, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो हिस्ट्री में आप देखें, हमारे पास जो भी गैलेक्सीज ऑफ स्टार्स हैं, उन सब की सारी जिंदगियां जेलों में गुजरी हैं। आसिफ जरदारी साहब जितना जेल काटा है, किसने इतना अरसा कोई जेल में रहा है? शहीद बीबी बेनजीर भुट्टो साहिबा जेल में रही हैं, उसके अलावा हमारे जितने अदी फरियाल तालपुर आपके सामने वो जेल में रही हैं, तो इन सब ने भी जेल काटा है। हमारा ये नहीं है कि अगर हम पर कोई केस साबित हो रहा है, कोई केस की साबिती है और दे कैन प्रूव इट, तो अब हम तो उस पर हम बैठेंगे। हम आपको याद होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब फेडरल गवर्नमेंट थी, तो हमारे एक मिनिस्टर ने करप्शन की थी और हमने उनको वहाँ से पोर्टफोलियो से हटा दिया था।
اور وہ اب آج کل اس فیڈرل گورنمنٹ کی پارٹی میں ہیں اور وہ وزیر ہیں. اور اسی طرح جب ادھر کوئی گورنمنٹ میں کوئی فیڈرل منسٹر کی کرپشن ثابت ہو رہی ہے تو ان کو ہٹانے کے بجائے ان کو بڑا عہدہ دیا جا رہا ہے, سیکرٹری جنرل کر دیا پارٹی کا. تو یہ مدینہ ریاست اور یہ کہاں پہ. پروگرام کا وقت یاور ختم ہو گیا ہے. صاحب ہمارے سینئر ہیں, بڑے میں بہت زیادہ عزت کرتا ہوں. پوائنٹ آ گیا. کمیل آپ کو نمبر دے دوں گی یاور بھائی کا, باقی بات آپ پرسنلی فون پہ کر لیجیے گا کیونکہ میرے شو کا وقت ختم ہو گیا. تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں سے انشاءاللہ تعالیٰ میں کل ملاقات کروں گی. بگ ڈے اگین بیکاز دیر از اے بائی الیکشن ہیپننگ. لیٹس سی واٹ ہیپنس ٹمارو. آپ کے فیڈ بیک انتظار رہے گا. اللہ حافظ.